Good evening, everyone. In last class, we have been discussing regarding the various type of different material that is used for the electrical wiring. So there we have studied what are the different type of junctions are there, what are the different type of cable that we should use. So these are the things that we required for the its presentation or its wiring diagram. So today we continue in this regards that how these topics will be the mixture of the second unit as well, light and fan connection, and a few topics that has been left into the first unit as well. So from here, your second unit will be also started, and the first unit, one or two things that has been left that will be covered at this place itself. So, as I'm talking about the what can be the various system through which we can draw the what we can say our electrical circuit. That's the what could be the basic diagram for it, or how we can do the connection for electrical and fans for. Uh, अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया हूँ so this is the things that we will start today. So let's start to this discussion that how your various type of diagram that we can draw. So we'll start with the electrical wiring system. What is the electrical wiring system that we'll see, and then we go through it and understand how this wiring is basically done. What should be the uh, basic requirement that we should take care in wiring system. These are the things that we have to understand. So, network of the wire connecting various associates of the distribution of the electrical energy from supply meter board to the numerous electrical energy consuming levels such as lamp, fan, and other domestic application through controlling and safety devices known as a wiring system. So this is a typical wiring system which can be used for the connecting of the fan and your lightning system. How we can do this? So from here you can see this is your serviceman which will become from the outside. From here it will become to the meter board, and from this motor board this will be come to the main distribution board. So as you can see in your household as well, that there will be first will be that from tower means from outside of the building you will take the connection means आप घरों के बाहर से देखेंगे कि पोल होता है वहां से पोल से सबसे पहले आप अपने घर तक इलेक्ट्रिसिटी लाते हैं एक बार इलेक्ट्रिसिटी घर पे लाने के बाद that electricity is connected to the meter. From meter again it is come to the our main UC MCB, or you can say from where we do the supply to the other rooms. So इस तरीके से हमारी संरचना होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमारे मीटर्स की हमारे जो भी वायरिंग हम लोग करते हैं उसकी.
तो वही चीज यहाँ पे चल रहा है कि सबसे पहले हम लोग का मीटर रहेगा। उस मीटर के थ्रू हम लोग लाएंगे यहाँ पे इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम के थ्रू हम लोग लाएंगे कहाँ पे, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लाएंगे। फ्रॉम दिस मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इट विल बी गिव टू द सम सप्लाई, मेन सप्लाई इज देयर। सो यहाँ से अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट घरों को लेके जाना चालू करेंगे। मीन्स आप एक सप्लाई के बाद वहां से क्या करना होता है कि हमारे घर में जितने भी कमरे हैं, जितनी भी जगह हैं, उनको क्या करना होता है, वी हैव टू टेक इट फ्रॉम दे। सो कुछ इस तरीके से हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं कि इसको एक बोर्ड में दे दें, मेन बोर्ड में दे दें। और यहाँ से हम लोग मेन बोर्ड से जहाँ जहाँ घर है उधर उधर लेके उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारे यहाँ एमसीबी लगी रहती है और न्यूट्रल लगा रहता है। सो दिस इज योर पेज, दिस इज योर न्यूट्रल। यहाँ पे हमारी एमसीबी लगी रहती है। फ्रॉम दिस एमसीबी वी गिव इट द मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वेर इज ऑफ द रूम। और वहाँ पे ले जाने के बाद जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहता है, जो सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहता है, उससे हम लोग लाइट्स, फैन, जो भी हमको कनेक्ट करना रहता है, वी कनेक्ट टू दैट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर थ्रू विच वी डू द वायरिंग। सो एक मेन बोर्ड रहता है, मेन बोर्ड से ही एक वायर को निकाल के हम लोग सब जगह इसको करते हैं। तो सिस्टम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया कि सिंस एज पर रिकमेंडेशन ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लाइट, फैन एंड पाइप ampere socket outlet that can be connected in one circuit is 10, and maximum load that can be connected in such circuit is 800 watt. In case more load or point are required to be connected the supply, then it should be done through more than one circuit. So हमारा स्टैंडर्ड क्या है कि एक जो बोर्ड लगा है उसमें सबसे ज्यादा जितना मैक्सिमम लोड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 800 वाट होना चाहिए। और उस सप्लाई से जो मैक्सिमम स्विच हमको लगाना चाहिए दैट शुड बी नॉट मोर देन द 5-10 पीस। मीन्स जो हमारे स्विचेस हैं या जो हमारे एम्पियर्स हैं वो उनकी जो मैक्सिमम संख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन 10। So this is the standard. Nowadays 800 watt is enough for one household to connect the light and fan. So suppose you have one max to max two light and one fan, that's the maximum we have. So if you may assume that your light should be up 9 watt, or uh, if you connect a very lightning system, then it should be not more than uh, 14 watts, because 14 watts give you the enough enough light, enough its luminous will be enough so that it can give all the lights to your household. And if you connect one fan to this, so nowadays most of the fan is coming of the around 50 watt like that. And with the time advancement is coming, now fans are coming of the less than 20 watts as well. So easily we can manage two lights, one fan, and even some charger if you connect all those things. The load on the socket not will be not exceeded around 500 600 watt. And even you can have connection for the TV as well, because TV consume around 20, 30 to 40 watt like that. So this is the maximum power that will be connected on a board. If your energy is exceeding to this, means suppose 800 watt, then in that case you should connect the another board. Means उस केस में क्या होना चाहिए, एक दूसरा बोर्ड खरीद कनेक्ट करना चाहिए और उसका जो सप्लाई आना चाहिए वो हमारा जो मेन बोर्ड है उससे एक अलग सप्लाई लेके हम लोग
आ सकते हैं, जिससे कि कोई प्रॉब्लम, सेफ्टी उसका बना रहे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम कैसा होना चाहिए? सो इन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम which is most commonly adopted for the distribution of the electrical in a building. The fuse of the various circuit are grouped together on a distribution board, sometimes simply known as a fuse board. So connection necessary for connecting two or more than two circuit is consist 10 or less number of lamp is shown in this figure 2. So कैसा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होना चाहिए और कैसा हम लोग लाइटनिंग के लिए यूज करते हैं? सो यू कैन सी दिस इन दिस। सो ये हमारा यहाँ से लिंक स्विच है। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इससे हमारे क्या कनेक्टेड है? ऑलमोस्ट 10 लाइट्स आर कनेक्टेड। यू कैन सी फ्रॉम दिस 10 लाइट्स, दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। So these are the various number of lights that has been connected and through the different circuit. If you see, so this is your distribution board. From this distribution board, we have a various circuit. Means one board will be connected in this direction, one board will be connected in this direction, one board will be connected in this direction, another board will be connected to this direction. So five. Suppose this is your MCB board. From this MCB board, we have taken this distribution to the different room, and from there we can connect it to the various lights into the system. So two copper strip known as a bus bar fixed into the distribution board of the hardwood and the metal case are connected to the supply mains through a double pore iron cord, which so that the installation can be switched on. A fuse is inserted into the positive and phase pole of the each circuit, so that each circuit is connected up through its own particular fuse. तो यहाँ पे हम लोग को क्या कर देना है? There will be some fuse and through which this connection will be done. So this is the one way through which these connection are done. The number of circuit and sub-circuit is decided as per number of point to be wired and load to be connected to the supply. तो हमको सप्लाई से कितना लोड कनेक्टेड करना है, बेस्ड अपॉन दिस वी विल डिसाइड हाउ मच दिस लिंक और हाउ मच दिस सर्किट शुड बी। मीन्स कितना हमको यहाँ पे एमसीबी लगाना है या कितना हमको यहाँ पे कनेक्शन देना है, ये डिपेंड करेगा कि कितना हमको ज़रूरत है, कितना हमारी ज़रूरत है, कितना हमको कितने घरों में हमको उसका बल्ब लेके जाना है। दैट्स विल बी ऑल डिपेंडिंग अपॉन दिस। Then another type of you can say connection type is known as a tree system. So tree system में क्या करेंगे? Another system of distribution of electrical energy in a building is a tree system. So in this system, smaller branches are taken from the main branches as shown in figure 3, and the wiring system resemble as a tree. Each branch is taken out, a fuse is inserted. So this system is used for employed in earlier days. Nowadays it is no more adopted due to the following drawback. So first one is voltage across all the lamp does not remain the same. Number of joints are involved in every circuit. Fuse are scattered, and in case of the occurrence of the fault, all the joints may be located. सो फ्यूज कनेक्शन में क्या होता है कि हम लोग अलग अलग जगह पे फ्यूज अलग अलग जगह पे सपोज दिस इज योर मेन लाइन। इस मेन लाइन से क्या कर रहे हैं कि सपोज एक घर आया, मेन लाइन को हम लोग पहले लाइन को लेके चल रहे हैं, इस लाइन को लेके चल रहे हैं। इस लाइन में सपोज एक
कमरा आ गया, तो उस कमरा के लिए हम लोग एक अलग से ले लिए, वहाँ से कनेक्शन ले लिए, एक जॉइंट कर दिया, और उस जॉइंट से हम लोग क्या करिए, उस रूम के लिए कनेक्शन ले लिए। फिर उसी लाइन को लेके क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो अगेन हमको एक दूसरा कमरा आ गया, तो अगेन वहाँ से एक कनेक्शन ले लिए, और फिर इसको वहाँ से कनेक्ट कर दिए। फिर एक आगे बढ़ेंगे, और फिर वहाँ पे यदि कोई कमरा आता है तो, या कोई प्लेस आता है तो वहाँ पे इस कनेक्शन को ले लें। सो दिस इज द ओल्ड फैशन। इस फैशन में क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इसका कि सपोज हम लोग सिंगल लाइन को ही लेके आ रहे हैं, और उसी सिंगल लाइन से सारे घरों को, एक घर के सारे कमरों को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, मीन्स कनेक्शन दे रहे हैं, जो मेन कनेक्शन है उसको दे रहे हैं। तो यदि एक फॉल्ट यहाँ पे होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पूरे सिस्टम का फॉल्ट हो जाएगा, पूरे सिस्टम में कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी। दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। नाउ व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन वी आर डूइंग, उसमें क्या है कि एवरी हाउस होल्ड हैज ए इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, मीन्स इंडिपेंडेंट हम लोग डायरेक्टली कहाँ से लेके आ रहे हैं, हर घर के लिए अलग अलग सर्किट लेके आ रहे हैं। पहले के घरों में क्या होता था कि जो पहले के जो तरीका होता था, उसमें क्या सिखाया जाता था कि एक लाइन लेके चलो, जहाँ पे भी कनेक्शन है वहाँ पे वायर को कट करो, वहाँ से कनेक्शन लो, वायर को कट करो, जंक्शन मारो, और वहाँ से कनेक्शन लो और आगे बढ़ जाओ। दिस इज द वे हाउ दीज थिंग्स आर डन। मोस्टली दे आर कनेक्टेड इनटू द पैरेलल। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि आप देखेंगे कि जो पहला कैमरा कनेक्टेड है, उसमें जो लाइट की इंटेंसिटी होगी, या लाइट जितना ग्लो करेगा, और जो लास्ट कैमरा कनेक्टेड है, उसमें जो लाइट की इंटेंसिटी या ग्लो होगी, बोथ विल बी डिफरेंट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट you can also feel it using the स्पीड ऑफ द फैन। अब फैन की स्पीड देखें, तो जो पहला कमरा होगा, उसका वोल्टेज अच्छा होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें अच्छा एक वोल्टेज मिलने की वजह से उसकी जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, इट विल बी गुड। वही जो दूर वाला कमरा रहेगा, उसका जो स्पीड क्या रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि उसकी वोल्टेज थोड़ी सी उसको कम मिल रही। So this is the thing that is happened in earlier day. Now the with the new technology is adopted, and with the new things has been adopted, so it is getting a little bit older, or due to its disadvantage. Now we are not considering this type of wiring. So next is method of the wiring. First one हम लोग क्या पढ़े, what are the different type of system that we can have. So this is your tree system, and this is your distribution board system. So in distribution board system हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर सिस्टम के लिए अलग से, लाइक घरों में आप लोग इफ यू सी दैट, हम लोग एक एक एमसीबी लगा देते हैं, और इस एमसीबी से हम लोग कनेक्शन हर घर के लिए लेके जाते हैं। हमारा एक एमसीबी बोर्ड रहता है, उसी बोर्ड से हम लोग सारे घरों के लिए अलग अलग वायर लेके या कनेक्शन लेके जाते हैं। और दूसरा हुआ ट्री सिस्टम। और ट्री सिस्टम में क्या है कि दिस इज एन ओल्डर फंक्शन सिस्टम। ओल्डर फंक्शन में क्या हो रहा है कि ड्यू टू द इट्स ऑल दिस थिंग्स, इस डिसएडवांटेज, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे भी हमको जरूरत पड़ेगा वहाँ पे कट मारेंगे, जंक्शन करेंगे, और वोल्टेज आगे लेके जाएंगे। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या हो रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस ऑल द टाइम डज नॉट रिमेन द सेम। और उसका कारण यही है कि there's some voltage will be lost in this
ट्रांजेक्शन फ्रॉम हियर टू हियर। नंबर ऑफ जॉइंट्स ज़्यादा हो जाएंगे। फ्यूज आर स्कैटर्ड, हर जगह आपको फ्यूज ही फ्यूज मिलेगा। और इन केस ऑफ द occurrence ऑफ द फॉल्ट ऑल द जॉइंट्स विल बी आइसोलेटेड। सो यदि एक फ्यूज यहाँ का उड़ गया तो उसके वजह से क्या होगा, पूरा सिस्टम, इफ यू अंडरस्टैंड, देन ऑल द सिस्टम विल बी वैनिश। या यहाँ का एक फ्यूज उड़ गया, देन होल सिस्टम विल बी, इसके आगे जितना भी सिस्टम रहेगा वो क्या हो जाएगा, दिस विल बी बिकेम फेल। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द दिस system. Next is method of the wiring. So there are two methods of the wiring known as a joint box system or tree system and loop in system. दो तरीका है वायरिंग का। एक तो हमारा क्या है, जॉइंट बॉक्स सिस्टम है, और दूसरा क्या है, लूप इन सिस्टम है। तो नाउ वी अंडरस्टैंड दिस टू मेथड। सो जॉइंट बॉक्स और ट्री सिस्टम में क्या होगा, in joint box system, the connection of the lamp is made through the joints made into the joint box by means of the suitable connection or the joint cutout. So in this method, there uh, is a saving of the quantity of the wire or cable required, but the same is offset by extra cost of the joint boxes. So other disadvantage of this system is T connection made in wiring result in weakness if not properly made. So nowadays the use of this system is limited to temporary insulation only as its cost is low. So जो अभी जिसका जिसका पुराना घर होगा और जिसके घरों में जो वायरिंग हुई है वो 2005 या उसके पहले 2010 के पहले हुई है, वो इस सिस्टम को समझ सकते हैं, ज़्यादा बेहतर से समझ सकते हैं कि उनके घरों में जो वायरिंग हुई होगी दैट इज डन यूजिंग द दिस टी सिस्टम और ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम। तो यदि किसी के घरों में हुई है तो यदि आप लोग समझे तो इसमें हो क्या रहा है कि हम लोग मेन जो वायर है, जो फ्यूज से हम लोग एक वायर लेके चल रहे हैं, एक घर में लेके गए मेन सप्लाई को, उस घर के जहाँ बोर्ड लगाना है उस बोर्ड के पास से हम लोग एक कट कर दिए, वहाँ पे जंक्शन बना दिए और उस जंक्शन को उस बोर्ड को सप्लाई दे दिया और फिर उसी वायर को लेके आगे बढ़ गए। सो दिस इज द वे हाउ दिस सिस्टम इज डन। So now in this system what is happening, uh, you can see from this diagram as well that from distribution board, suppose this is your main line and from this line जब भी हमको जरूरत पड़ रहा है, सपोज यहाँ पे हमको जरूरत पड़ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग द cut from here and then connecting it from this system. देन आगे जब भी कनेक्शन जरूरत पड़ेगा अगेन वी विल टेक द कट फ्रॉम हियर और फिर से उसको कनेक्ट करेंगे। सो इसमें एक एडवांटेज क्या है कि अमाउंट ऑफ द वायर जो लगेगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा। वायर कैसे कम लग रहा है, क्योंकि इस कनेक्शन में क्या है कि हमको बार बार मेन जंक्शन से बार बार हमको हर एक पर्टिकुलर रूम के लिए वायर लेके नहीं चलना पड़ रहा है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और व्हाट वी कैन से बेटर रिजल्ट, कि यहाँ से इफ यू सी डेट कि हमें हर एक घर के लिए अलग से वायर लेके नहीं चलना पड़ेगा। वी विल गो थ्रू द ओनली वन वायर और वही वायर विल वर्क फॉर द होल होम। सो इसके वजह से क्या हो गया, ड्यू टू दिस व्हाट विल बी हैपन, there is a saving of the wire which will reduce the cost of the system, but one cost will be increased is of the
जॉइंट बॉक्सेस। जहाँ जहाँ पे हम लोग जॉइंट मारेंगे वहाँ वहाँ पे हमको बॉक्स लगाना होगा, सो उसका जॉइंट विल इंक्रीज। But as compared to the joint boxes, the cost of the wire is less. Sorry, cost of the wire is more. So, in due to this, this joint box or T system is cheaper as compared to the another looping system. So, this is the one example for the this you can see. Next is looping system. So, this system is universally used for the connection of the various lamp और अदर एप्लीकेशन इन पैरेलल। तो जितने भी पैरेलल लैंप हैं उसके कनेक्शन के लिए इस तरीके के लूपिंग सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। सो इन दिस सिस्टम व्हेन द कनेक्शन इज रिक्वायर्ड एट लाइट और स्विच, द फीड कंडक्टर इज लूपिंग by bringing it direct to the terminal and then carrying it forward again to the next point to feed as shown in दिस फिगर। सो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से जहाँ से भी चालू हो रहा है वहाँ से लेके जाना है। इस पूरे सिस्टम को हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे, फिर यहाँ से कनेक्शन करेंगे और फिर इसके आगे लेके चलते जाएंगे। So the switch and light feed are carried around the circuit in series of the loop from one point to another point until the last point is reaches. So A system हमारा चलता रहेगा until the last point is reached down. So the phase or line contributor are loop either in switchboard or box, and the neutral are loop either in switchboard or from the light and fan. So line or phase should never be loop from light or the fan. So selection of the choice of the wiring system क्या है, किस आधार पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे किस वायरिंग सिस्टम को हमको एडॉप्ट करना है और किस वायरिंग सिस्टम को हमको एडॉप्ट नहीं करना है। तो द फर्स्ट वन इज सेफ्टी, सेकेंड वन इज ड्यूरेबिलिटी। कि पहला चीज हमको क्या है कि वी रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सेफ्टी। सो व्हेन द सेफ्टी इज कम देन इन दैट केस हमको क्या चाहिए, our home should be safe from the any type of fault or any type of fire from anything. So first thing क्या है कि हमारा जो वायरिंग होना चाहिए इट शुड बी सेफ। ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए उस वायरिंग की वजह से जिसके वजह से पूरा घर ही हम लोग का क्या हो, जल जाए। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सेकेंड वन इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होना चाहिए, इट शुड बी हाई। ड्यूरेबल मीन्स हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए, लंबे समय तक काम करते रहे। ऐसा नहीं कि हमारा सिस्टम 8-10 साल में खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे सिस्टम का वायरिंग कैसा हो, ऐसा वायरिंग हो कि वो लंबे समय तक 20-30-40 साल तक वो वायरिंग चलता रहे कम से कम। 10 क्या है, अपीयरेंस है। अपीयरेंस का मतलब क्या है कि वो देखने में कैसा होना चाहिए, इट शुड लुक ब्यूटीफुल। ऐसा नहीं है कि वो देखने में अच्छा ना लगे। हम लोग वायर को कहीं से कहीं लेके जा रहे हैं, कहीं बीच में से घर के ट्रायंगुलर मार दे रहे हैं या फिर डायगोनल लेके चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अपीयर गुड। और उसके अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, ऐसा कि इट शुड बी लुक ब्यूटीफुल। ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ ए डे दिस प्रॉब्लम इज नॉट कमिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द वायरिंग इज हैपनिंग द इनसाइड द वॉल। ज़्यादातर लोगों की पसंद क्या है कि देयर वायरिंग शुड बी हैपन इन इनसाइड द वॉल। तो इसका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, इट शुड बी गुड। मैकेनिकल प्रोटेक्शन होना चाहिए कि हमारा जो वायर जा रहा है या जो भी चीज़ जा रही है उसका क्या होना चाहिए, मैकेनिकल प्रोटेक्शन। मैकेनिकल प्रोटेक्शन हम लोग कैसे बोलेंगे कि जो वायर जा रहा है उसके ऊपर कोई तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है जिससे वो ब्रेक हो जाए
जिसके वजह से वो खराब हो जाए, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए कि उसको हम लोग आराम से एक्सेसिबल कर लें, आराम से हम लोग उसको, सपोज कोई भी स्विच है, कोई भी फैन है, कुछ भी है, आराम से वो हम उसका यूज कर सकें, एक्सेसिबल कर सकें। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। देन वी हैव a लो इनिशियल कॉस्ट। लो इनिशियल कॉस्ट का मतलब क्या है? वी शुड हैव सम लो कॉस्ट फॉर द दिस सिस्टम, कि जब हम लोग वायरिंग करें तो उसकी जो वायरिंग का कॉस्ट है, इट शुड नॉट कम वेरी हाई। हम लोग का जो कॉस्ट होना चाहिए, इट शुड बी लो। एंड द लास्ट वन इज लो मेंटेनेंस कॉस्ट। तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी लो, लो टू लोवेस्ट होना चाहिए। बार बार ऐसा नहीं है कि हमारा वायर खराब हो रहा है या फिर ऐसा सिस्टम है लगा दिए हैं जिसमें बार बार फ्यूज उड़ रहा है। तो वो सब रेटिंग हमको ध्यान में रखते हुए इस तरीके से करना चाहिए। इट शुड बी डन इन सच a way that it give us the proper proper long duration life for the our wiring. So these are the few advantage and things that we have to take in mind while selecting the which type of wiring system we should use. तो डिफरेंट टाइप ऑफ वायरिंग सिस्टम क्या है कि पहला डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम है, दूसरा टी सिस्टम है, और मेथड ऑफ द वायरिंग क्या है? फर्स्ट वन इज जॉइंट बॉक्स वायरिंग है, और दूसरा क्या है? लूपिंग सिस्टम। सो दो तरीके के वायरिंग है, दो तरीके के हम लोग इस वायरिंग को कैसे करना है, अ, दो तरीका ये है। और फिर उसके बाद क्या है कि हम लोग कैसे वायरिंग का क्या फैसिलिटी होना चाहिए, डेट वी कैन अंडरस्टैंड कि एक वायरिंग करने के बाद क्या उसकी अहमियत होनी चाहिए, क्या हम लोग उससे रिक्वायरमेंट है। इट शुड बी कम द सिलेक्शन एंड द चॉइस ऑफ द वायरिंग, किस तरीके से हम लोग वायरिंग करेंगे, ये इन बातों पे निर्भर करेगा। Then we have a classification of the cable. That one topic has been remains कि हम लोग केबल को कैसे क्लासिफाई करते हैं, बेस अपॉन विच we can do the classification. So cable employ for the initial wiring of the building may be divided into the different groups according to the. So केबल को क्या यूज है? जो भी वायरिंग चालू हो रही है, उसके जो इनिशियल पेजेस हैं, उसमें सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो क्या है? दैट इज केबल। केबल का पहला काम क्या आता है? सो इट इज टेक wire, means this cable is used for the coming of the from main supply to the household। सबसे पहला काम तो हम लोग केबल के जरिए यही करते हैं कि बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उससे अपने घर में लाने के लिए। और फिर उसके बाद दिस केबल कैन बी यूज फॉर द वायरिंग पर्पजेस, connection purposes. So depending upon its use, we can have its type, कि उसमें क्या क्या हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द कंडक्टर यूज, कंडक्टर कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं कि थर्मल कॉपर यूज कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन डेट। नंबर ऑफ द कोर, नंबर ऑफ द कोर का मतलब है कितना नंबर आप उसमें वायर यूज कर रहे हैं उसके ऊपर। वोल्टेज ग्रेडिंग क्या है कि कितना रेटिंग है उसका, वोल्टेज कितना रेटिंग है उसका, उसके ऊपर। टाइप ऑफ द इंसुलेशन यूज, कि उसमें पीसीबी लगा है या रबर लगा है, क्या लगा है, उसके ऊपर। अकॉर्डिंग टू द so based upon that we have a different type of grading, different things.
So यदि if you deriving it based upon the conductor, so क्या हो सकता है, it will be happen like a copper conductor cable, एल्यूमिनियम कंडक्टर केबल। दो ही हम लोग के कंडक्टर है, या तो एल्युमिनियम होगा या तो कॉपर होगा। बेस अपॉन डेट केबल कौन भी क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये कॉपर मटेरियल का बना है या एल्युमिनियम का बना है। पिन है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कोर, तो नंबर ऑफ कोर कितना है इसमें, वेदर इट इज अ सिंगल कोर, डबल कोर और थ्री कोर, अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज ग्रेडिंग कि उसका वोल्टेज ग्रेडिंग कितना है। So that can be 250 by 440 volt scale, or 650 by 100 volt scale. According to the type of the insulation, so क्या उसमें इंसुलेशन के यूज किए हैं कि पीवीसी है, लीड सेटेड केबल है, वेदर प्रूफ केबल है, फ्लेक्सिबल केबल है, या फिर क्रॉस लिंक पॉलीथीन केबल है, टफ रबर सील्ड केबल है, या फिर वैक्यूलाइज इंडियन रबर है। क्या मटेरियल हम लोग यूज किए फॉर इट्स इंसुलेशन, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी कैन हैव द वैरायटी ऑफ द केबल। So this that is for today. I will stop here as the time is so let me just take your attendance. So person who are present today are uh, अभिजीत बनर्जी, अभिषेक कुमार भदौरिया, अरदान नशेर सामी, अमरजीत रॉय, अंकुर कुमार, अशोक कुमार केवट, धीरज मौर्य, दिलीप सिंह, मेहरुद्दीन अंसारी, नजीस अहमद, पवन कुमार खारे, प्रवेश कुमार जोशी, राहुल पचौरी, रोशन राज, शैलेश कुमार, शक्तिमान कुमार, शिवशंकर कुमार। So these are the person who are present. Anyone else apart from this? Okay, so thank you everybody. We're going to meet tomorrow for further discussion in this regard. So I am ending this meeting at this point.